जैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट होता है हम लोग आगे बढ़ते हैं. So very good morning to all of you. Warm welcome for the station of NDS. We are in our third unit and we are discussing regression tool. In the previous session, बात की हमने for both the regression lines. We are knowing that we will be tracing two different regression lines. One of them is regression line y on x. Second will be regression line x on y. That if we wish to predict y based on x, if we are going to predict y, if we are going to estimate y based on x, dependent on x, then we will be looking for regression line y on x. And the format of regression line y on x will be y minus y bar is equals to vyx, x minus x bar. And the regression line x on y, when we will be in need of regression line x on y, if we are going to predict x based on y, then regression line x on y will help us, and the format for regression line x on y will be something like that: x minus x bar equals to vxy into y minus y bar. Now here we need to deal with two regression coefficient vxy, vyx. Now the actual formula for both the regression coefficient vyx is having a formula like this: r, which is coefficient of correlation, multiplied with standard deviation of y divided by standard deviation of x, and regression coefficient vxy we may define like that: r standard deviation of x divided by standard deviation of y. Now both these are the actual formula. We may simplify both this formula in some of the different methods. This is one of them. This is one of the formula for both the regression coefficient. Now you may modify this formula even. इसको भी modify कर सकते हैं. ये सारी बातें हो चुकी है. So let me go through it once. I need to erase the ink from the slide. Yes. Yes, mostly we will be using one of them. या तो ये वाली formula use कर रहे होंगे, or we may use this. Both these are the formulas for regression coefficient, और सारे दोनों जो regression coefficient है उसकी कुछ properties हमने list out की थी. The properties, some of the important properties, चलिए एक बार discuss कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं examples के लिए. What was the first property? Both the regression coefficient will have the same sign. That order is this order कोई मायने नहीं रखता. ठीक है, वहां पे पहली property हमने ये discuss की थी that the geometric mean for both the regression coefficient is always the coefficient of correlation, is it? But order doesn't matter. Don't worry about that. Same sign. First important property is same sign. Both the regression coefficient will be either positive or both will be negative. Is it? ऐसा नहीं हो सकता कि one of them is positive, other is negative. So this is the first important property. Second important, if one of them is greater than, if one of them is greater than one, then surely other will be less than one. But this condition is I cannot say this is necessary and sufficient condition. ये सही है, but from the one and only. If one of them is greater than one, then surely other will be less than one. पर ऐसा हो सकता है both the regression coefficient is having value less than one. But it is not possible, it is impossible that both the regression coefficient are going to take value greater than one. ऐसा नहीं होगा कि दोनों की value एक से बड़ी है. ये this is impossible. Okay. So this is the second most important property. Now the third was the geometric mean of both the regression coefficient is always coefficient of correlation. Is it? The arithmetic mean of both the regression coefficient, arithmetic mean of both the regression coefficient is always greater or equals to r. And the sign of r, that means sign of coefficient of correlation, is always same as sign of both the regression coefficient. अगर दोनों regression coefficient positive है तो r भी positive. If both the regression coefficient are negative, we will consider r as a negative. Okay. So these are some of the important properties related to coefficient of correlation, regression coefficients. Now similarly, we are having some of the properties related to regression lines. ये property थी regression coefficients की.
रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, इज इट? टेक केयर। मैं ऐसा भी एक शॉर्ट क्वेश्चन डाल सकता हूँ आपके लिए एग्जाम में, स्टेट 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, list out the properties of regression lines, is it? So you need to remember this, you need to remember this. आपको पता होना चाहिए कौन कौन से प्रॉपर्टी रिग्रेशन कोएफिशिएंट के लिए है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रिग्रेशन लाइंस के लिए। तो चलिए जल्दी से देखते हैं रिग्रेशन लाइंस की प्रॉपर्टी क्या है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं अभी भी। properties of regression line, lines of regression. The two regression line x on y and y on x always intersects at their mean. If we are having both the regression lines, suppose this is a regression line x on y, this is a regression line y on x, तो उन दोनों का जो intersection है ना, that is always x bar and y bar. X bar means x bar, y bar means the arithmetic mean of series x and y respectively, is it? So both the regression line intersects at their means. This is most important property. इसके बेस के ऊपर इसी के ऊपर एक क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन था अभी जो गेट वाली एग्जाम गई उस पे, ठीक है। So this is the first property of regression line. The second, this is ditto same with that earlier property, that sign of r bxy and byx, that means sign of coefficient of correlation, and both the regression coefficient will be always same, will be always same. And this is important, ये वाला when r is having value 0 and when r is having value 1. If r is having value 0, then the regression coefficient will be always 0. अगर r की value 0 है तो दोनों regression coefficient की value 0 होगी। क्यों? Because bxy कोई भी दोनों regression coefficient की फॉर्मूला आप अगर देखें, then this is r standard deviation of x divided by standard deviation of y, and this is equals to r standard deviation y divided by standard deviation x. अगर r 0 है, मान लीजिए if r is having value 0, r की value 0 है तो ये पूरी value 0 होगी, is it? Then both the regression coefficient will be always 0. If r is having value 0, then both the regression coefficient will be 0. And if the regression lines become identical, दोनों regression line है वो बिल्कुल same हो जाएगी, identical हो जाएगी। कब? कौन से केस में? If r is having value plus or minus 1, अगर r की value plus 1 है या minus 1 है, then both the regression coefficient will be always same. It follows from the regression equation that x equals to x bar and y equals to y bar. Now, if r equals to 0, then both the regression lines will be perpendicular to each other. तो याद रखने वाली बात ये है, both the regression lines will be perpendicular to each other. ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। कब? If r is having value 0 and if r is having value 1, अगर r की value 1 है plus or minus 1, then both the regression lines will be ditto identical. तो ये दोनों प्रॉपर्टी याद रखनी है। दोनों regression लाइन सेम कब हो सकती है? जब r की वैल्यू प्लस और माइनस 1 हो, और दोनों परपेंडिकुलर कब हो सकती है? if r is having value 0. ये समझ में आएगा क्यों r की वैल्यू 0 है तो दोनों परपेंडिकुलर, क्यों r की वैल्यू प्लस और माइनस 1 है तो दोनों आइडेंटिकल। बट दिस आर द important properties related to regression lines, is it? इसके लिए भी काफी सारे MCQs बना सकते हैं, जैसे कि देख लीजिए ये वाला सेंटेंस, I may ask if r is equals to 0, then both the regression lines will be dash perpendicular, identical, intersecting. ऐसे काफी सारे ऑप्शंस में डाल सकता हूँ, काफी सारे MCQ यहाँ से फॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। Now let me take you towards, okay, पहले तो ये बताइए इसके लिए कोई डाउट? Do we have any question related to this? I don't think so, but फिर भी अगर कुछ है, if there is any question related to this, then let me know. If you are good, then acknowledge on the chat box. If you are having any question, then please. Okay, कोई डाउट नहीं है कवन को. All those who are attending this are supposed to drop a message on the chat box whether we are good with this or not. 3 लोग अटेंड कर रहे हैं शायद. नाम लेके बोलूं क्या मैं सर किसी का? Am I supposed to? Good. All those who are attending this are requested to acknowledge the list. Good. Let me move further. चलिए आप बात करते हैं एग्जाम्पल्स की. आज बात करेंगे एग्जाम्पल की, कैसे रिग्रेशन लाइन फॉर्म हो सकती है. First of all, okay, I don't think so. We should go with this. Wait. 11 को छोड़ देता हूं मैं.
लेट्स मूव फॉर द एग्जांपल, ये भी नहीं, इसके बाद वाला लेके जाता हूँ। यस, now find the regression coefficient bxy and byx from the following data and hence find the coefficient of correlation between x and y. ये वाला एक डेटा है, this is a data related to, this is a bivariate data. Bivariate data क्यों बोल रहा हूँ इसको, because in this particular data I'm giving you two variables x and y. Now what we are supposed to find, we are supposed to find three different values from this. We are looking for r, which is coefficient of correlation. We are looking for both the regression coefficient, that is bxy and byx. ये तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है, ये तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ देयर आर टू डिफरेंट वेज, दो अलग रास्ते से हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट आइडेंटिफाई आर, पहले आप आर आइडेंटिफाई कर लीजिए। अब आर आइडेंटिफाई करना है तो फॉर दैट वी आर हैविंग थ्री डिफरेंट मेथड्स फॉर आर। तीन फॉर्मूलाज है हमारे पास आर की, फॉर्मूला नंबर 1, 2 and 3, इज इट? आफ्टर evaluating R, we may go for both the regression coefficients bxy and byx. This is the first option. Second, पहले दोनों regression coefficient identify कर लीजिए bxy, byx, and based on that, using both this regression coefficient, you may go for R. So choice will be yours. किसी भी तरीके से करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, but one of them, one of the way, suppose this is the ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है जो कि थोड़ा आसान रहेगा, कंपैरेटिवली थोड़ा आसान रहेगा। वो कौन सा, कोई जज कर पाएगा? कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, ए या बी? ऑप्शन ए में मैं क्या बोल रहा हूं, पहले आर आइडेंटिफाई करो फिर दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट आइडेंटिफाई करो। ऑप्शन बी में मैं क्या बोल रहा हूं, पहले दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आइडेंटिफाई करो देन इवैल्यूएट आर। आपको क्या लगता है, विच ऑप्शन इज प्रेफरेबल, क्या करना चाहिए? सर मैं तो ये करता। धामेचा बोल रहा है कि सर मैं पहले ये करता। ठीक है धामेचा, ये बता आर के लिए कौन सी फॉर्मूला यूज करेगा? चल सर एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली समय मुझे दूसरी याद नहीं। माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइड बाय, लेट मी हेल्प यू, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स द होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन सिमिलर टर्म विद वाई। इज इट? इस वाली फॉर्मूला से तू पहले आर इवैल्यूएट करेगा, फिर बी एक्स वाई बी वाई एक्स यूज कर इवैल्यूएट करेगा। बी एक्स वाई के लिए तू फॉर्मूला कौन सी यूज करेगा? सर इसकी कोई वो सिग्मा वाली नहीं है फॉर्मूला बी एक्स वाई की? सिग्मा वाली फॉर्मूला चल, तीन फॉर्मूला है उसके लिए भी। अच्छा वो सिग्मा तो हमारे पास नहीं है सर। देख ये वाली फॉर्मूला भी कर सकता है तू, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाय समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार द स्क्वायर, ये भी हो सकता है। सो तेरी चॉइस है, कुछ भी कर, इसी से भी कर। फिर अगर ये फॉर्मूला यूज किए तो बी वाई एक्स में भी वही फॉर्मूला यूज करेगा, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में एक्स वाला टर्म आएगा समेशन एक्स माइनस एक्स बार द स्क्वायर। पर अगर इससे कर रहा है ना तो ये फॉर्मूला नहीं करनी चाहिए, तो आर के लिए भी वही फॉर्मूला यूज करना। आर के लिए भी एक और ऑप्शन तो है हमारे पास जिसमें टर्म्स सेम आ रहे। कौन सी है वो, ये वाली थी, याद कर थोड़ा, समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस एक्स बार द स्क्वायर समेशन वाई माइनस वाई बार द स्क्वायर। इज इट? अब देख इसमें टर्म्स काफी सेम है, ये वाला यहाँ तीनों में है न्यूमरेटर में, और ये वाला टर्म एक बार तूने आइडेंटिफाई कर लिया तो दोनों के न्यूमरेटर में वही वाला दोनों में डाल सकते हैं। तो चल, हर्ष बोल रहा है, धामेचा बोल रहा है कि इस तरीके से जाना चाहिए। अब धामेचा अगर तू सोच इस तरीके से जाना है तो तुझे पहले आर फिर बी एक्स वाई बी वाई एक्स, ठीक है, 3 बार ये फॉर्मूला अप्लाई करनी पड़ेगी। अब मैं थोड़ा इसको रिवर्स करूंगा। व्हाट आई विल डू, I will first evaluate bxy byx and then I will go for r. अब bxy byx मान ले मैं इसी तरीके से इसी फॉर्मूला से इवेल्युएट कर रहा हूं bxy byx दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट। नाउ व्हाट आई विल डू फॉर r, r के लिए मैं क्या करूंगा, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करूंगा। कर सकता हूं, कोई उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि नहीं कर सकता, नहीं ऐसा नहीं है, कर सकते हैं। पर मैं क्या करूंगा उसके लिए एक सिंपल सा लॉजिक यूज करूंगा, वो वाली प्रॉपर्टी के बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट, अगर दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट का जियोमेट्रिक मीन लिया जाए ना तो वो r होगा।
तो सिंपल है, जब मेरे पास बी एक्स वाई बी वाई एक्स दोनों है तो उसको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लूं, खत्म, आर मिल गया। समझ में आ रही बात? यस यस, हाँ सो ये आसान ऑलवेज रहेगा। ऑलवेज ऑप्शन बी इज प्रेफरेबल। टाइम कंज्यूम थोड़ा, टाइम इसमें थोड़ा कम लगेगा इन कंपेयर ऑफ ऑप्शन है, पर ऐसा नहीं है धामेचा कि जो सर बोल रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं वही सही है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। पर दो ऑप्शन है तेरे पास, तू किसी भी तरीके से कर, is it? पर इसमें टाइम हर बार कम लगेगा, इसमें थोड़ा ज्यादा लगेगा, ठीक है। सो ये बात सभी को समझ में आ रही है? आउटलाइन ऑफ द क्वेश्चन कि हम किस तरीके से जाने वाले, वी विल बी लुकिंग फॉर ऑप्शन बी, हम इस तरीके से जाएंगे। आर वी गुड? आर वी गुड? तो हम आगे बढ़ते हैं, चलिए बताइए, हाँ या ना? आर वी गुड? हाँ ना, चलिए लेके चलता हूं इसके लिए। अब हम पहले क्या करने वाले, वी विल बी लुकिंग फॉर बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। मुझे चाहिए दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, ठीक है। अब मैं पहले तो डिसाइड करूंगा कि बी एक्स वाई बी वाई एक्स के लिए तीन फॉर्मूला है। चलिए रुक जाओ, वो भी दिखा दूं, तीन फॉर्मूला है। कौन कौन सी तीन फॉर्मूला है आपको समझ में आना चाहिए। देखिए ये स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, these are the three different formulas for bxy and byx. Sorry, these are the three different formulas for bxy and byx. Wait, I had a call, just give me 1 minute. So देखिए तीन ऑप्शन है आपके पास, इसमें से कौन सी करनी है, कौन सी फॉर्मूला से बी एक्स वाई या बी वाई एक्स आइडेंटिफाई करना है, वो आपको डिसाइड करना है। अगर आप देखें, अपना डेटा देखें ठीक से, इसको देखिए, यहाँ पे एक्स और वाई काफी छोटे हैं, इज इट ना, बहुत ही छोटी वैल्यू है। तो अगर एक्स वाई की वैल्यू काफी छोटी है, न्यूमेरिकल वैल्यू काफी छोटी है, देन द सेकंड फॉर्मूला इज ऑलवेज प्रेफरेबल। तो ये वाली फॉर्मूला प्रेफरेबल है, इज इट। अगर एक्स वाई थोड़े बड़े हैं, थोड़े, देन दिस फॉर्मूला इज प्रेफरेबल। और अगर x और y वो बहुत ही बड़े हैं, देन वी विल बी लुकिंग फॉर चेंजिंग ऑफ इट्स स्केल। तो उसका स्केल चेंज करेंगे एंड देन वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। सो अभी के लिए जब x और y की वैल्यू काफी छोटी है, वी शुड गो फॉर द सेकंड। अब यहां पे भी मैं जो बोल रहा हूं उसके काफी अल्टरनेट है। ऐसा नहीं है कि सेकंड फॉर्मूला से करेंगे तभी बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की वैल्यू सही आएगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इज इट? यू मे गो फॉर एनी ऑफ द फॉर्मूला, किसी भी फॉर्मूला से कर सकते हैं, बी एक्स वाई बी वाई एक्स की वैल्यू सही आएगी, सेम ही आएगी। क्यों? क्योंकि ये तीनों फॉर्मूला है ना, वो कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला का सिंप्लीफिकेशन है, मॉडिफिकेशन है, अलग अलग तरीके से उसको सिंप्लीफाई किया हुआ है, ठीक है। बट द कन्वीनियंट थिंग इज, अभी के लिए कन्वीनियंट ये सेकंड है, तो मैं सेकंड से सॉल्व कर रहा हूं, देखिए, ठीक है। तो बी एक्स वाई के लिए मैं फॉर्मूला ये अप्लाई करूंगा, समीशन एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइड बाय एन, डिवाइड बाय y है तो नीचे y वाला, y लास्ट में है तो नीचे y वाला टर्म आएगा, सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y द होल स्क्वायर डिवाइड बाय, इज इट? एंड सिमिलरली द फॉर्मूला फॉर byx विल बी सिग्मा xy माइनस सिग्मा x सिग्मा y डिवाइड बाय n। देखिए न्यूमेरेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे y वाला टर्म था, बिकॉज दिस वाज रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y, लास्ट में y आ रहा है तो y नीचे, यहाँ पे दिस इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y ऑन x, तो x वाला टर्म नीचे होगा, सिमिलर टर्म विल विद x, सिग्मा x द स्क्वायर सिग्मा x द होल स्क्वायर डिवाइड बाय, इज इट? तब इसको देख के आपको डिसाइड करना है अपना टेबल, इसको देख के आप अपना टेबल डिसाइड करेंगे कि टेबल में मुझे क्या क्या चाहिए। पहले तो मैं x लिखूंगा, y लिखूंगा, उन दोनों को रिप्रेजेंट कर दूंगा, इन दोनों का जो टोटल है दैट इज सिग्मा x सिग्मा y, इज इट? देन आफ्टर दैट मींस कि ये मिल गया, देखिए सिग्मा x सिग्मा y मिल गया। अब मुझे चाहिए सिग्मा x y, इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, तो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूं मैं। यहाँ पे जो भी वैल्यूज है, जैसे कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज 4 2, सेकंड इज 2 3, थर्ड इज 3 2, इज इट? अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो भी आएगा, 4 2 8, 3 2 6, 3 2 6, लाइक दिस। इसका जो टोटल आएगा उसको हम बोलेंगे सिग्मा एक्स वाई। तो ये भी मिल गया। चलिए अब मुझे चाहिए सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर, ठीक है। देन आई विल गो फॉर एक्स द स्क्वायर, कॉलम एक्स स्क्वायर
एंड वाई स्क्वायर, बात खत्म। इन दोनों का जो टोटल है दैट इज समेशन एक्स स्क्वायर समेशन वाई स्क्वायर। एक्स माने कि ये 4, द स्क्वायर ऑफ 4 इट विल बी 16, 2 का स्क्वायर दैट इज 4, 16 4 9, ये जो भी आ रहा है दैट इज समेशन एक्स स्क्वायर, दिस विल बी समेशन वाई स्क्वायर सिमिलरली बेस्ड ऑन दिस कॉलम, इज इट 4 9 4 जो भी आ रहा है। So once we are having all these values, we're gonna replace them in both these equations and we may find both the regression coefficient. चलिए मैं दिखाता हूं आपको कैसे किया है मैंने। Just go through it once, just go through it. जल्दी से देख लीजिए। I'm giving you 2 minutes. Let me know once you are good. Let me know. Take your time, take your time. कोई जल्दी नहीं है, बट आपको बताना है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। I'm waiting for your reply. हाँ, take your time, take your time. कोई जल्दी नहीं है, but you need to reply. आई बात समझ में कि नहीं? ऐसे ना ऑब्जर्व, ऐसा नहीं है कि हर बार बी एक्स वाई बी वाई एक्स की वैल्यू सेम आती है, ठीक है? ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई इंटरप्रिटेशन अपने दिमाग में मत रख लो कि जो वैल्यू बी एक्स वाई की आ रही है वही बी वाई एक्स की, माने कि दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू सेम है। नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। यहाँ पे लकीली इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी आर हैविंग बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर सेम। यहाँ पे वो सेम है, पर हर बार नहीं होगा, ठीक है? बट ऑब्जर्व, बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर हैविंग नेगेटिव साइन। ये हर बार से सेम रहेगा, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव। अगर आप इसके ऊपर प्रॉपर्टी चेक करें पहली दो कि दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट की साइन सेम होगी, हाँ है। दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक से छोटे हो सकते हैं, हाँ सही है, दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक से छोटे हैं, ठीक है? नाउ वंस वी आर हैविंग बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट विद अस, तो आर कैसे निकालते हैं? R माने कि coefficient of correlation, अब we all know that R is a geometric mean of both the regression coefficient bxy byx। अब bxy है क्या मेरे पास? that is minus 0.25 minus 0.25, इन दोनों का स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट और इसका स्क्वायर रूट, तो आएगा that is 0.25। पर mathematically that is 0.25, but I need to take minus. Why? Due to one of our property that दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट की जो साइन होती है वही साइन लेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इज इट? सो आर की वैल्यू भी होगी माइनस 0.25। अब देखिए यहाँ पे हमने आर के लिए वो बड़ी सी फॉर्मूला को साइडलाइन कर दिया, वरना क्या होगा, आर के लिए भी आपको वो कार्ल पियर्सन वाली फॉर्मूला अप्लाई करनी पड़ेगी, जो हम नहीं कर रहे। अभी हम सिंपली आर को इवेल्युएट कर रहे हैं, ठीक है? लेट मी नो, आई बात समझ में कि नहीं? धामेचा, by unmuting yourself. Yes, sir. Brinda, are you there? Brigu, are you there? Brigu, Brinda. Yes, sir. Done. Yes. Anjali, are you here? You are here, Anjali. Yes, sir. I joined now and listen. Everything is good at home? Fine? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। आ रही बात समझ में हर किसी को? जय तराविया।
चैतराव्या, Yes, sir. गुड। चलिए आगे लेके जाता हूं, थोड़ा देखिए। The number of bacterial cells per volume in the culture at the different hour is given below. अब x क्या है? x represents the time in hour and y represents the bacterial cell. y represents the bacterial cell. मान लीजिए कि ये वायरस के सेल है, कोरोना वायरस के सेल है, is it? अब जीरो, जब इनिशियल टाइम, जीरो माने कि इनिशियल टाइम पे कोई बैक्टीरियल सेल की का वैल्यू था, उसका ग्रोथ था 43। वी डोंट नो 43 का, चलिए 43 रखते हैं, नंबर ऑफ 43 number of bacterial cells were there in one of the culture. After 1 hour वो 43 में से 46 हो गए, आफ्टर 2 आवर 46 में से 82 हो गए, 3 घंटे के बाद 98, इसी तरीके से आगे बढ़े, देन 9, आफ्टर 9 आवर इट इज 272. So this is the data we are having right now. अभी तक कोई क्वेश्चन मैंने नहीं पूछा है, but this is the data we are having. Now what is my question? Fit lines of regression of y on x and x on y, माने कि दोनों regression line आप मुझे दीजिए फाइंड करके, and also estimate the number of bacterial cells after 15 hours. And also estimate the number of bacterial cells after 15 hours. आपको estimate करके देना है कि what will be the value of bacterial cells after 15 hours. मतलब कि जब x की वैल्यू 15 है ना, तब y क्या होगा? This is what I'm asking. And before that, we need to find both the regression lines. Regression line x on y, y on x. अब थोड़ा सोचिए कि यहां पे जो डेटा है उसमें कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करनी चाहिए। पहले तो ये क्लियर है कि हमको दोनों रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है। दोनों रिग्रेशन लाइन का फॉर्मेट ये है, x on y इट इज x minus x bar equals to b x y y minus y bar, दिस रिग्रेशन लाइन x on y, और y on x अगर फाइंड करनी है तो ऐसा फॉर्मेट होगा y minus y bar equals to b y x x minus x bar। अब इन दोनों में चाहिए मुझे बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। तो रिग्रेशन लाइन फाइंड करने से पहले मुझे दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट तो चाहिए ही चाहिए। सो अभी हमने देखा था कि रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के लिए हमारे पास 3 अलग अलग फॉर्मूलाज है। अब मैं ये पूछ रहा हूं, आप कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे? व्हाट विल बी योर चॉइस? तीनों कर सकते हैं, तीनों से आंसर सही नहीं आएगा, पर आप कौन सी चूज करेंगे यहाँ पे? ये वाला क्वेश्चन बाद में डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे इवेल्युएट करेंगे, कैसे एस्टिमेट करेंगे, ये बात की बात है। पहले तो दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट के लिए बात कर रहे हैं। चलिए, कौन बताएगा 3 में से कौन सा ऑप्शन आप लेंगे? Which option is preferable? Which option is preferable? Let me know. Or the chat box, or the chat box. I'm waiting, dear. Hello. Damacha is saying y is having bigger values, so might be we may go for third one. देखिए मैंने किस तरीके से किया। I'd gone for the second. I'd gone for the same formula. जिस तरीके से हमने लास्ट में किया था ना, वैसे ही करना है। Let me show you. By observing the columns, you can easily identify the formula which I am gonna deal with. देखिए, sigma x, sigma y, sigma x square, sigma xy और sigma y square, is it? हाँ, सही है तू हर्ष। देख, यहाँ पे values काफी बड़ी आ रही है। This is quite big values, but we are supposed to deal with the calculator, and as I said that you may go for any of the formula, कोई फर्क नहीं पड़ता।
बस फर्क हमने क्यों 3 फॉर्मूलाज अलग अलग आइडेंटिफाई किए, ताकि अगर काफी बड़ी वैल्यूज है तो हम उसको थोड़ा उस प्रोसेस को जो कि टीडियस होगी उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर पाए, इज इट? पर इसका मतलब ये नहीं कि आप फॉर्मूला कंपलसरी वही यूज करें, ठीक है? सो कोई भी कर सकते हैं, मैंने वही फॉर्मूला से ये तीनों वैल्यू आइडेंटिफाई किए। नाउ वंस आई एम हैविंग सिग्मा x, सिग्मा y, सिग्मा x स्क्वायर, सिग्मा y स्क्वायर एंड सिग्मा xy, आई may easily go for both the regression coefficients. अब देखिए यहाँ पे जब when I am going to identify regression coefficient byx, अब ये भी जरूरी नहीं है कि पहले आप byx करें फिर xy करें, ठीक है? दैट विल बी योर चॉइस कि पहले कौन सा रिग्रेशन कोएफिशिएंट आइडेंटिफाई करना है, bxy करना है या byx करना है, कोई भी कर सकते हैं आप इन एनी ऑफ द ऑर्डर। मैं जैसे ही byx इवेल्युएट कर रहा हूं, मुझे वो वैल्यू मिल रही है 27.0061, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, ऐसा। अब वो वाली प्रॉपर्टी काम में आएगी कि if one of the regression coefficient is greater than 1, then second will be surely less than 1. अब जब आप दूसरा regression coefficient आइडेंटिफाई कर रहे हैं bxy, तो वो उसकी वैल्यू 1 से कम ही आनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू भी 1 से बड़ी आ रही है तो गलत है, तो कहीं ना कहीं आपने गलती कर दी है। बट I'm getting it is 0.0366, so it's totally fine कि एक की वैल्यू 1 से बड़ी, एक की वैल्यू 1 से छोटी। अगर अगले वाले क्वेश्चन आप याद करें कि दोनों की वैल्यू 0.25 थी, दोनों की वैल्यू x से छोटी थी, so it is also acceptable. Okay, now once we are having both the regression coefficient, we may easily go for regression lines. regression line बहुत आसानी से कर पाएंगे, पर उसके लिए चाहिए होगा arithmetic mean for both the series x bar y bar की भी जरूरत होगी। तो x सिग्मा x सिग्मा y है हमारे पास, उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करके x bar y bar निकाल सकते हैं। now once we are having both that regression coefficients as well as both the arithmetic mean, we may go for regression line. तो चलिए पहले इवैल्यूएट करते हैं regression line y on x. Now y on x, regression line y on x is having a format y minus y bar equals to b yx x minus x bar. अब बहुत कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे तीनों वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, तीनों वैल्यू रिप्लेस करने हैं। y बार ये रहा यहाँ पे, x बार ये रहा, and for regression line y on x I am in need of regression coefficient y on x. ये गलती ना कर दे आप, ठीक है? यहाँ पे कौन सा regression coefficient डालना है, that is purely on which regression line we are dealing with. We are dealing with y on x, तो यहाँ पे regression coefficient आएगा y on x. तो y on x भी ये रहा 27 point something something something. After replacing all that values, देखिए वही सारी values मैंने यहाँ पे replace की। अब इसको मैं फॉर्मेट कौन सा बनाऊंगा, कौन से फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करूंगा, y इक्वल्स टू समथिंग, ठीक है? क्यों भाई? क्योंकि ये रिग्रेशन लाइन y on x है, तो उसको हम, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये है कि उसमें से y को सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है? सो सिंप्लीफाई अगर इसको कर दूं, देन इट विल लुक लाइक दिस 27.00061x प्लस समथिंग. So this is my regression line y on x. Regression line y on x. अब similarly I may go for regression line x on y. Similar process होगा, similar kind of process. अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, regression line x on y, उसका फॉर्मेट देखिए, x equals to function of y plus or minus one of the constant. Y equals to function of x plus or minus one of the constant. अब दोनों रिग्रेशन लाइंस है मेरे पास। क्वेश्चन क्या था? आइडेंटिफाई बोथ द रिग्रेशन लाइंस, कर दिया हमने। ऑल्सो एस्टिमेट द नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स आफ्टर 15 आवर्स। दैट मींस कि जब x की वैल्यू 15 है, x इज अ टाइम, x की वैल्यू 15 है तो y क्या होगा? तो हम क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? आई नीड वन ऑफ यू टू अनम्यूट योरसेल्फ। हर्ष अनम्यूट योरसेल्फ दिए, हर्ष दामिच अनम्यूट योरसेल्फ दिए क्विकली। यस सर। देख हम एस्टिमेट क्या कर रहे हैं, y को एस्टिमेट कर रहे हैं या x को? यस y को। यस सर, y को प्रेडिक्ट कर, y को एस्टिमेट कर, y को प्रेडिक्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन x। x की वैल्यू दी है, y को प्रेडिक्ट करना है। तो तुझे डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन सी लाइन तुझे हेल्प करेगी। ये y इक्वल टू यस, अगर y को एस्टिमेट कर रहे हैं, y को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो रिग्रेशन लाइन चाहिए y ऑन x। अगर x को प्रेडिक्ट करना है तो रिग्रेशन लाइन चाहिए x ऑन y, ठीक है? सो व्हाट आई विल बी डूइंग at x equals to 15 hours, we are looking for y. तो इस वाले फॉर्मूला में, इस वाले फॉर्मूला में, यस, इस वाले फॉर्मूला में मैं x को 15 से रिप्लेस करूंगा। Is it? I will replace 15 over here in this particular formula and I will evaluate the y. And the value of y will be something
432 blah 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 जो भी आ रहा है, that is not important for me. ये कैलकुलेशन important नहीं है मेरे लिए, ये आपको सिखाना important है कि कब कौन सी लाइन यूज करनी, is it for the prediction. Now this is what the regression is, simple regression is. बताइए कितनों को समझ में आ रहा है, कितनों को नहीं आ रहा है. All those who are attending this will drop a message on the chat box. It's very very important. All those who are getting this will reply, will acknowledge. जो रिप्लाई कर रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है, उसी की अटेंडेंस निकलेगी आज. Good. I will forward the same presentation with to all of you ताकि आप खुद से प्रैक्टिस कर पाए. ठीक है. Let me take you further. One more question. Find two regression line using the following data. One of the data is related to age of husband and other is related to age of wife. Okay. Now what I'm looking for, estimate the age of husband when the age of wife is 19. घरवाली की उम्र अगर 19 है तो husband की उम्र क्या होगी? And second question is that age of wife when age of husband is 30. Okay, sorry. फर्स्ट में ये थी घरवाली की उम्र अगर 19 है तो घरवाली की उम्र क्या होगी, और सेकंड इज दैट अगर घरवाली की उम्र 30 है तो घरवाली की उम्र क्या होगी. काइंड ऑफ सिली प्रेडिक्शन बट काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि नॉनसेंस प्रेडिक्शन है, पर we may have the kind of relationship, we may have both the regression line based on age of husband to age of wife and the reverse, दोनों evaluate कर सकते हैं, हो सकता है, and ये दोनों prediction भी दे सकते हैं. Is it? Let me show you. अब पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ बस दिखा रहा हूँ आपको. देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ. ये वैल्यू काफी बड़ी नहीं है. ये यहाँ पे अगर आप देखें तो जो बाइवेरिएट डेटा है मेरे पास क्वेश्चन में, ये कोई बड़ा सा डेटा नहीं है. Is it? It is not a kind of data की जिसकी वैल्यू काफी बड़ी है, पर फिर भी सिर्फ आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए, या फिर वो दिमाग से डर दूर करने के लिए, I can change the scale. All of us are comfortable, all of us are knowing one of the property that both the regression coefficient are independent from change of scale. Sorry, change of origin, not from the scale. आप उसका scale change नहीं कर सकते, आप उसका origin change कर सकते. That means you may add or subtract one of the fixed number to both the variables, from both the variables, but you cannot multiply or divide. यहाँ पे multiply or divide allowed नहीं है, पर add और subtract कर सकते हैं कोई एक fixed number से. So x वाली पूरी सीरीज में से मैंने 26 subtract किया है और नया एक x बनाया है जिसको मैं बोल रहा हूँ dx. dx क्या है यहाँ पे डिफाइन किया है मैंने, देखिए. और y वाली पूरी सीरीज में से मैं 17 subtract कर रहा हूँ, 17, and that new variable y will be denoted as dy. Once I'm changing the origin of both the data, तो नई जो फॉर्मेट होगी, नए जो डेटा चाहिए होंगे वो इसी फॉर्मेट में आएंगे, dx square, dy square and dx dy. And surely I'm going to use the third formula now. थर्ड फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे x और y लिख रहे थे, वहां पे हम लिखेंगे dx dy, nothing else, और कुछ फर्क नहीं है. And I will calculate both the regression coefficients. Observe that one of them is less than 1 and other is greater than 1. पर ऐसा हर बार नहीं होने वाला, ठीक है, कि हर एक बार एक की वैल्यू x से कम, x से बड़ी, ऐसा नहीं होता. दोनों की वैल्यू x से कम एक्सेप्टेबल, एक की वैल्यू x से बड़ी, एक की वैल्यू x से छोटी एक्सेप्टेबल, बट which is not acceptable that both the regression coefficient are having value greater than 1. देखिए मैं हर बार बोल रहा हूँ, when I am dealing with one of the question, I'm repeating the same instruction again and again. The reason is that कि यहाँ से आप अपनी गलती पकड़ सकते हो. And both the regression coefficient are having same sign. Observe, both these are having positive sign. Now once we are having both the regression coefficients, we may go for the prediction. वो वाली line हम find कर सकते हैं, दोनों regression line find कर सकते हैं. This is a regression line y on x. इसमें से मैंने y को subject बनाया, and similarly we may go for regression line x on y. And once we are having both the regression line, we may go for the prediction. If we wish to predict the age of husband, मानी कि we are going to predict x, then we will be using regression line x on y. And if we wish to predict y, then we will be using regression line y on x. ठीक है? And when we are predicting kind of data like age of a person, तो जब वैल्यू आ रही है 29.601, तो हम उसको नियरलेस्ट इंटीजर पे राउंड ऑफ करेंगे. 29.6 will be nearly 30.
इसका मतलब ये है कि अगर वाइफ की उम्र 19 है, then husband must be of 30. That's it. And if I'm getting 18.894 as my one of the prediction, तो उसको मैं नियरेस्ट इंटीजर पे राउंड ऑफ करूंगा 18.8 के नजदीक वाला इंटीजर, दैट इज 19. सो दैट मीन्स कि अगर हस्बैंड की उम्र 19 है, देन एज ऑफ वाइफ मस्ट बी around 90. So this is a prediction, nothing else. This is a prediction. Is it? We may give such prediction using the regression lines. Is it? So this is what we are learning. This is what we are learning. Is it? So this is a kind of information related to regression. अब काफी सारे questions है. We are yet pending with 2 questions जो कि हमने skip किए थे, ये वाला. But we will be discussing this question as it's already 10:41 and we are running out of time. So 2 questions discuss करने बाकी है. We will be discussing that in the next session. Okay, let me stop. Okay, before I stop the recording, I request all of you to drop a message for your attendance purpose. Drop your enrollment number on the chat box right now. I'm waiting. Drop your enrollment number on the chat box right now. Drop your enrollment number on the chat box right now. Before you leave, you need to drop your enrollment number on the chat box. After giving your attendance, you may leave the meeting. After giving your attendance, you may leave the meet.